आई थिंक सारे आंसर्स एकदम से आपको समझ में तो नहीं आए होंगे। और वन अनदर थिंग, टिस्बाट का जो 2016 का पेपर था ना, आई डिड नॉट सी अ लॉट ऑफ एरर्स इन दैट पेपर। इस पेपर में मुझे ना थोड़े से एरर्स दिखे। डिड यू रियलाइज दैट? Yes, ma'am. Ma'am, I also had quite a few confusions also, because maybe because of the question was wrong, or maybe the answer was not right. तो आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज, बिल्कुल सेम फील कर रहे हैं हम लोग। Yes, ma'am. क्योंकि मुझे भी लगा कि इसमें कुछ एरर्स थे, सो आई थॉट अगर आंसर्स गिवन भी हैं तब भी हम डिस्कस कर लेते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, सो फर्स्ट वन, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। It is the duty of every citizen of India to dash the constitution. देखो इसमें तो clearly abide by आता है, if you knew it or you did not know it. The thing is, abide by का basically आपका मतलब होता है कि abide by या फिर उसको मानना चाहिए या फिर उसको as a rule book लेना चाहिए, और abide के साथ हमेशा by आता है, ठीक है? So that's the rule. Okay, next आपका है complete the sentence with the correct option. Critical review, like all useful feedback, should present a method to fix the problem. Dash the receiver could become discouraged. ठीक है, तो अब यहाँ पे if you have to look at the options, तो आपको किस टाइप का यहाँ पर option चाहिए? What kind of an option do you need here? Conclusive. Sorry? So, ma'am, cause and effect. हाँ, cause and effect kind of relationship. तो I think out of the given options और कोई जाता ही नहीं है। And also when I look at TISBAT का पेपर, मुझे एक चीज रियलाइज हुई, which is कि ये वाला जो पेपर आपका होता है, ये बहुत ही मतलब इजी पेपर है, बट सारी चीजें इसमें आप देखो तो जनरल रूल्स पे अप्लाई करती हैं, कुछ बहुत बड़े रूल्स नहीं है। ओके, सो मैम यहाँ पे however क्यों नहीं हो सकता? However the receiver could be discouraged. Okay, like critical review, like all useful feedback, should present a method to fix the problem. However, the receiver could be discouraged. ठीक है, यहाँ see, tell me when do I use however? Meaning क्या होता है however का? मतलब generally कब use करते हैं? To show an alternate. No. However is but. But yeah. ठीक है, contrast होता है however. Ma'am, but critical review usually can be a contrast that while receiving review, the receiver can be discouraged also. I mean, but the receiver can be discouraged with the feedback or the review. So no, critical review, like all useful feedback, you are missing like all useful feedback. Do you see that? Okay. Right. So basically, critical review ko Ayushi, right? Ayushi is talking. Yeah. So Ayushi, if you look at critical review, probably in your head you think critical review is always negative, isn't it? Yeah. No, critical review can at times be, at times we say you should always have a critic, isn't it? Right. So critical review is basically आपका एक analysis, उसमें let's say एक negative, या मतलब उसको कोई अच्छे से analyze करता है, उसके अंदर देखता है। critical review हमेशा negative नहीं होता, ठीक है? One thing. Second thing, critical review like all useful feedback. So यहाँ पर ये like all useful feedback क्यों लिखा है? ये बताने के लिए कि जो ये critical review है, ठीक है, वो आपका useful feedback है। Okay. ठीक है, और फिर हम कह रहे हैं critical review like all useful feedback should present a method to fix the problem. ठीक है, so ये पूरा positive हो गया, ठीक है? A dash, the receiver could become discouraged. However, the receiver could become discouraged. यहाँ पे तो critical review और receiver का discouraged होना. How is however, but the receiver could become discouraged? How does it fit here? हम यहाँ पे ये बताने की कोशिश करें ना कि यार ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, right? Okay. Like someone said, cause and effect kind of a thing. कि if doesn't happen, this can happen. Okay, got it. ठीक है? Yeah. So I hope it's clear. Yeah, thank you. Okay, great. So चलो अब jumble sentence देखो ये वाला.
मैंने इसका ऑप्शन नीचे छोड़ दिया, ऑप्शंस तो दिखाई सकती हूँ। हाँ, ऑप्शंस Ma'am, A. Okay, what do others say? C, third option. Yeah, third. Okay, third option देख लेते हैं. God, it's lonely है, lonely, cold and wet. देखो ये बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि जो हमारे ये हैं C और A साथ में आएगा और D उसके बाद ही आएगा. मैम B भी तो साथ में आएगा. इनफैक्ट B भी आएगा क्योंकि सारे एक्सक्लेमेशन है. Well, it would be, wouldn't it? और देखो यहाँ पे if you look at it, आपका आंसर इनफैक्ट what is it? मैं इसको सिंगल पेज कर देती हूँ, ये बहुत ही इरिटेटिंग होता है डबल पेज. ठीक है, एक सेकंड साइज. हाँ, सी यहाँ पे इसका आंसर एक्चुअली CADB ही है. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर क्योंकि पहले सब आप बात कर रहे हो कि ऐसा है. Well, it would be, wouldn't it? Thousands of feet down here at the bottom of the ocean. यहाँ पे आप एक let's say conversational tone में आ गए. So conversational tone तो सिर्फ हमारी end में ही आ सकती है ना, after all the let's say expression we had. So right, you guys are right. It's CADBE. Just a second. Not able to hide this one. Second वाला आप देखो, इसमें आंसर मैं हाइड नहीं कर पा रही. ओके, सो ये वाला हुआ क्वेश्चन. ठीक है, चलो इसका आंसर गिवन है, लेकिन इसमें मैं आपको एक दो इंडिकेटर्स बताती हूँ. ठीक, सबसे पहले whenever you look at parajumbles, ठीक है, whenever you see a question mark at the end of any sentence, मतलब एक के end में भी आपको question mark दिखता है. So there are two possibilities, right? What are they? या तो मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, ठीक है, और अगर मुझे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, what do I do? लास्ट में रख देंगे. एब्सोल्युटली, रखना ही पड़ेगा एंड में. तो यहाँ पे मुझे ये बहुत क्लियरली दिख रहा है, if our bureaucrats and politicians killed our industrial revolution, won't they do the same with the knowledge revolution? देखा जाए तो इसका कहीं आंसर नहीं है, isn't it?
ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस वाली स्टेटमेंट का। तो ये बात तो पक्की है कि ई एंड में आएगा, बाकी देख लेंगे। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, 2 और 4। बाकी सारे ऑप्शन हट गए हमारे। यस मैम। ठीक है, अब हम उन दोनों ऑप्शंस को देख लेंगे। अब आप ये देख लो कि आई थिंक दोनों ऑप्शंस देख लो। ये सेकंड वाला स्टार्ट हो रहा है, शाइनिंग इंडिया, द ग्रोथ इकोनॉमी, द न्यू सुपर पावर, और ये स्टार्ट हो रहा है with competitive advantages in agriculture and new knowledge economy। See, देखा जाए तो बी बहुत क्लियरली आपको इंट्रोडक्टरी टाइप का सेंटेंस दिख रहा है ना। सो व्हाट आई सजेस्ट इज, इन क्वेश्चंस में अगर एक भी इंडिकेटर मिल जाए ना, तो बाकी दोनों ऑप्शंस हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे एंड वी आर डन। बिकॉज बिना मैंडेटरी पे या किसी भी चीज के क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्लियर है ये वाला? डिड यू गेट द अप्रोच? Yes. Okay. Okay, now this one. Third option. Okay, third option. Is it that straightforward? I think so because हाँ, actually. बताओ क्यों, आप क्यों कह रहे हो? because I think it will start with B only because it's an introduction. The minister asked the UN for aid. Then the mission was captured in American headline, and the headline would be हाँ, new C leaders E तो come again. definitely आपका mandatory पेयर हो जाता है, नहीं? और ये एक ही Yes, ma'am. ऑप्शन में है। एक ही ऑप्शन में। आई थिंक वी आर डन। ये सबसे इजी, तो इसमें जिसे कहते हैं ना, सबसे बड़ी बेवकूफी कहें कि हम एग्जामिनर की यही है कि सीई इतना ज्यादा ऑब्वियस है और एक ही ऑप्शन में दिया। ठीक है, फेयर इनफ, इसको इतना ही टाइम देना था आपने। ओके, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, ये 5 सेंटेंस वाला है आपका। देखो, एक सेंटेंस ये पढ़ लो और मैं इसको अगर डबल पेज में कर दूं तो आपको दिख जाएगा। आर यू एबल टू सी द कंप्लीट क्वेश्चन नाउ? यस मैम। ठीक है। डन। डन? यस मैम। ये वाला समझ में आया क्वेश्चन? मैम इसमें डी और सी को मैंडेटरी पेयर कर देंगे। अच्छा, D किसको? and A also. डी सी को मैंडेटरी पेयर कर देंगे। ठीक है, और ए को कैसे? इन दिस इंडेक्स। हाँ देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊं, इन दिस इंडेक्स, तो इंडेक्स कहाँ हमने किया है, वो बी में एक्सप्लेन किया है। तो आई थिंक सबसे पहले तो बी ए को मैंडेटरी पेयर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो बी में एक्सप्लेन किया हुआ है जीएनएच। यस मैम। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। द ओनली थिंग
The only thing with this particular question is ये वाला ना आपका सीधा देखकर नहीं होगा, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आपका देखकर नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा जिसे कहते हैं ना आपको पढ़कर ही होगा, है ना? क्योंकि इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. Ma'am, can we also say that the B part of it was Bhutan's king. That's the only line that can be kept as an introduction, and among the options, only first option has B in the हाँ, starting. आप कह सकते हो क्योंकि भूटान के किंग की कहीं और मतलब कुछ है ही नहीं. Isn't it? Yes, ma'am. ठीक है, next let's go to the next question. ये वाला समझ में आया? चूज द ऑड वन आउट जो अगला क्वेश्चन है. Yes, ma'am. Again go back to the single page. ठीक है, इसमें थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना विजिबिलिटी बेटर होती है. ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया ऑड वन आउट इलिसिट. देखो इजेक्ट, एक्सपेल, एविक्ट, ये जो तीनों वर्ड्स हैं व्हाट काइंड ऑफ अ मीनिंग डू दे कन्वे? To remove, basically. टू रिमूव, राइट? तो ये अगर आपको इलिसिट का मीनिंग, वैसे तो आई मीन इट्स अ कॉमन वर्ड इलिसिट, बट अगर नहीं भी पता हो तो आई थिंक ये हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमें बाकी तीनों को पता है. और एलिसिट का आपका मीनिंग होता है टू ड्रॉ फोर्थ और ब्रिंग आउट समथिंग, ठीक है? ऑपोजिट हो गया. क्या? हाँ, बिल्कुल ऑपोजिट. वो ऑपोजिट हो गया. अब नेक्स्ट देखो, आई थिंक सेकेंड वाला तो बहुत ही इजी है ना? Yes. चेंज, चिकन, सील, रैम. आई मीन चेंज इज बेसिकली अ वर्ब या फिर नाउन भी. चिकन, सील, रैम आर काइंड ऑफ लेट्स से लिविंग animals. थिंग्स. Sorry, लिविंग थिंग्स. living things. Yeah, ठीक है. Okay, next is this RC. If you could read this one paragraph, it would be great. This is a very interesting paragraph. Done? Can I move?
ओके, आई थिंक ये पैराग्राफ तो पढ़ लिया होगा. कितना टाइम लगा इसको पढ़ने में? I don't think you'll take more than like 3-4 minutes to read this paragraph. 3-4 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, isn't it? Yes, ma'am. See, the reason I'm trying to tell you कि time को थोड़ा restrict करो, उसका एक बहुत simple सा reason है. वो ये कि देखो, I mean everything is economical, right? हर चीज में हमें ये देखना है कि हम कितना टाइम लगा रहे हैं और कितना हमें उससे बेनिफिट मिल रहा है, राइट? तो इतना छोटा सा पैसेज पढ़ने में अगर 4-5 मिनट लगा दिए तो आगे का पेपर कब करोगे? ठीक है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विल द ऑथर नॉट अग्री विद. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आपको एक चीज देखनी है, विच इज कि देखो नॉट अग्री विद क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखो यहाँ पे तो नॉट कैपिटल में गिवन है. ठीक है, बहुत ही एकदम से कैपिटल्स में गिवन है. लेकिन कभी कभी एग्जाम में होता क्या है, व्हाट द एग्जामिनर डज इज कि नॉट को आपको कैपिटल्स में ना देके नॉर्मल स्मॉल लेटर्स में देगा, एंड देयर आर कंप्लीट चांसेस कि आप नॉट को मिस कर दो. इफ यू मिस नॉट, क्या होगा, आप वो चीज मार्क करोगे कि अकॉर्डिंग टू विच इट्स ट्रू, है ना? तो वहां पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है. ओके, regional languages such as are dying because of English medium. See, थोड़ा रॉन्ग नहीं लग रहा है ये? हाँ, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये इनकम्प्लीट है. सच एज के बाद कुछ एग्जांपल्स होंगे जो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं. Such as हिंदी होगा, इसमें लिखा होगा. हाँ, है ना? तो बहुत ही स्टूपिड सा ऑप्शन है ये. और मैम 4 नंबर ऑप्शन, One needs money to be able to learn English. मैम ये तो पैसेज में दिया हुआ भी नहीं है, तो ये भी तो हो सकता है ऑथर कहीं से एग्री नहीं कर रहा हो. दिया तो है. What if your financial backing prohibits you from learning English? It's given. हाँ हाँ given. और देखो मैं आपको एक चीज और कहूंगी, whenever you are answering, right, आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो. आपका क्वेश्चन है which of the given statement will the author not agree with, right? Given on the basis of the reading of your passage, आपको क्या लगता है कि किसके साथ ऑथर अग्री नहीं करेगा? आपको ये नहीं गिवन कि बिल्कुल एग्जैक्टली गिवन है. इसकी तरफ एटलीस्ट हिंट तो किया है ऑथर ने, राइट? Okay, next question. As per the author, the movie is about? Couple struggle for their child's education. Yes, absolutely. So देख रहे हो यहाँ पे कितना easy passage है ये. ठीक है, आई थिंक ये तो बहुत ही easy है. The author is biased against stereotyping regional language speakers. ठीक है, फिर है हाँ स्टेलर. ये जो है ना, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन मीन स्टेलर. ठीक है, ये तो आपका अलग ही क्वेश्चन है, ये उसका है भी नहीं. बट जस्ट वन थिंग, यहाँ पे अगर आप देखो अमेजिंग, प्लीजिंग, स्पेशल, ठीक है, दीज आर द ऑप्शंस जो एनीवे बड़े सिमिलर है, राइट? सो डिवाइन इज द ओनली थिंग विच इज डूएबल. और दूसरा, देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल जनरल वोकैबुलरी क्वेश्चंस एंड वोकैबुलरी क्वेश्चंस इन आरसीज. जनरल वोकैबुलरी क्वेश्चंस हमें आंसर करने होते हैं अकॉर्डिंग टू योर, लेट्स से जनरल वोकैबुलरी क्वेश्चंस हमें आंसर करने होते हैं डिक्शनरी मीनिंग या योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड. जब वोकैब क्वेश्चंस आरसी से आते हैं ना, व्हाट इज द फॉलोइंग वर्ड मीन इन द पैसेज, आपको कंटेक्चुअल मीनिंग पर ज्यादा ध्यान देना होता है. ओके, एंड इंग्लिश में इट जनरली हैपेंस कि कंटेक्चुअल मीनिंग कई बार आपका डिक्शनरी मीनिंग से स्लाइटली डिफरेंट होता है. ओके, नेक्स्ट वन. Choose the option that would make the sentence most grammatically correct for the underlined part. Just look at it.
Okay, let me know if you understand the answer. Third one. ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया. ठीक है. Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट देखो. Richa was not displeased that her book wins the first prize in the international competition. यहाँ पर इशू क्या है सेंटेंस में? Wins. हाँ, क्योंकि रिचा वॉज है तो यहाँ पे भी वन होगा. आई थिंक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. नेक्स्ट वाला देखो, स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स. ये बेसिकली आपका कॉमन कंफ्यूजिबल है. कौन सा साइट आएगा यहाँ पे? Third वाला CITE. हाँ, साइटेशन जो बुक की होती है CITE. अब ये ओकेजनली देखो, चलो ये तो आप छोड़ सकते हो कि मैं भी आपको स्पेलिंग्स कराऊंगी. ओके, इन द स्टेटमेंट द चाइल्ड क्राइड copious tears. Which of the following options does not mean copious? Copious का क्या मतलब होता है? Copious is abundant. ठीक है? Abundant या फिर let's say अच्छी quantity, in good quantity. That's what copious means. Good quantity या फिर let's say required quantity. ठीक है? That's what copious means. So अगर हम यहाँ पे let's say options भी देख लें, तो copious का मतलब होता है abundant. ठीक है? Ample भी ample, it's like enough. Liberal is बहुत ज्यादा, मतलब खुले हाथ से. Profuse is same. देखा जाए तो modest और ample, या modest और liberal पढ़ के मुझे यही समझ में आ गया कि ample liberal means similar. Modest is opposite, isn't it? Yes, ma'am. तो अगर profuse का किसी को मीनिंग नहीं भी समझ में आ रहा, there can be chances. यहाँ पे हम let's say modest के साथ चांस ले सकते हैं. ठीक है. Which of the following does not mean the same as the word highlighted? सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ड कहाँ हाईलाइट हुआ है? यहाँ पे वर्ड होगा आपका steadfast. ठीक है, देखो अगर यहाँ पे steadfast आप देखो, steadfast का मीनिंग होता है committed. Unwavering मतलब जो वेवर नहीं कर रहा, मतलब committed है, इधर उधर उसकी कमिटमेंट नहीं हिल रही है. ठीक है. Resolute means the same. Nonchalant is non-serious. Okay. Okay, then look at this. The plane has so little fuel that the pilot was. ये वाला idiom कितने लोगों को पता था? Ma'am, I knew. पता था. Pins and needles. Basically, what does it mean? I'm nervous. Nervous या फिर in a fix या in a problem. Okay, then choose the most. They felt they were in the dog house even though they had nothing wrong. What does it mean, in the dog house? I'm in trouble. Okay, anyone else who knows the meaning? It means be in disfavor, not in favor of something.